Good morning to all of you. Class 8, Subject Social Science, Chapter 10, India after Independence. Dear students, आज इस लेसन का लास्ट लेक्चर है, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 139 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे द नेशन 16 years on, कि राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। On 15 August 207, India celebrated 60 years of its existence as a free nation. How well has the country done in this time, and to what extent has it fulfilled the ideas set out in its constitution? तो 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमने देश का प्रदर्शन कैसे रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए, that India is still united and that it is still democratic are achievements that we might justly be proud of. Many foreign observers had left that India could not survive as a single country, that it would break up into many parts, with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own. Others believed that it would come under military rule. However, as many as 13 general elections have been held since independence, as well as hundreds of states and local elections. There is a free press as well as an independent judiciary. Finally, the fact that people speak different languages or practice different faiths has not come in the way of national unity. तो भारत अभी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। ये गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रशासनों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई है। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्य तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र नगर न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोग भी भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता में भी राष्ट्र एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। ऑन द अदर हैंड, परंतु दूसरी ओर ये भी सच है, डीप डिवीजन persists despite constitutional guarantees. The untouchabilities, or as they are now referred to, the Dalits face violence and discrimination. तो परंतु दूसरी ओर ये भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, in many parts of rural India, they are not allowed access to water sources, temples, parks, and other public places. तो आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। And despite the secular ideas enshrined in the Constitution, there have been clashes between different religious groups in many states.
Above all, as many observers have noted, the gulf between the rich and the poor has grown over the years. Some parts of India and some groups of Indians have benefited a great deal from economic development. They live in large houses and dine in expensive restaurants, send their children to expensive private schools, and take expensive foreign holidays. At the same time, many others continue to live below the poverty line, housed in urban slums or living in remote villages on land that's arid. Later, they cannot afford to send their children to school. तो संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। द कॉन्स्टिट्यूशन recognizes equality before the law, but in real life, some Indians are more equal than others, judged by the standards it set itself as independence. The Republic of India has not been a great success, but it has not been a failure either. तो हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। Thank you and have a nice day.